और हर बार जब भी लोगों को कम करती है उसका एक नया एक्सक्यूज होता है। तो इस बार जो एक्सक्यूज दिया गया है, जो कारण बताया गया है, वो बताया गया एआई की वजह से। And sir, you work with many schools and colleges, universities. So where you have seen that disconnect between the student and the education system, कि इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री की नीड है, ये दोनों बहुत अलग है। should we all use AI as a competitor या AI as a companion? न तो सारा काम आपका यही कर सकता है, आपको जहाँ जहाँ मदद लगे वहाँ दीजिए, बाकी तो काम तो आपका अपने आपको ही करना पड़ेगा ना। पर्सनल ह्यूमन टच होता है, वो AI कभी रिप्लेस नहीं कर Yes. सकता, और वो टच चाहिए जहाँ पे ह्यूमन का इंटरवीन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे तो जॉब्स अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो द ओनली थिंग दे स्पोक अबाउट इज कोई भी जीवन में रोटी खानी है, आगे बढ़ना है, तो खाली आप इंजीनियरिंग करो, उसके अलावा सारे कोर्सेज बेकार हैं। मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना, बच्चों को आप अपने साथ एंगेज करिए, वो सबसे बड़ी बात है। एक बात याद रखिए, पहले क्या था कि आपका वर्क अलग था और घर अलग था, राइट, तो अब क्या हो गया, आपका घर और होम एक ही हो गया। आई हैव सीन मोस्ट स्कूल स्टिल फॉलो लाइक द फैक्ट्री सिस्टम। कोविड से तो मैसिव फर्क है। मुझे लगता है ये इट्स अ कंटिन्यूअस री इंजीनियरिंग प्रोसेस। What's that one piece of career advice you want to give to Gen Zs and Gen Alphas? मुझे लगता है आप अपने ऊपर ज्यादा समय नहीं, कम से कम 2 मिनट आप अपने आप पर देता है। द बिगेस्ट मिस्टेक पेरेंट्स एंड टीचर्स डू इन देयर लाइफ इज दे लेबल देयर चिल्ड्रन अपोजिट टू देम। आई फील इससे बड़ा कर्स कुछ नहीं हो सकता। Hello, and welcome to Beyond the Classroom podcast, the podcast where we step outside the textbooks and talk about real-world topics that shapes young mind. Today, we have a very special guest. He is a man of many dimensions, a trailblazer in education, entrepreneurship, and future skills, Dr. Shankar Goenka. He is the managing director of Wow Factors India, the brain behind Krishi Viman drones, a certified master trainer and advisor to NSTC, IICA, MSME, CII, and many more. With over 2 decades of experience in training more than 500 plus schools and colleges, he had helped thousands of students and educators rediscover how to think, lead, and live with purpose. He's also trained professionals at NTPC, ONGC, Indian Oil, Patanjali, and other corporate giants while working across governments, universities, and NGOs. But beyond the titles, it's his mission that stands out to bring emotion intelligence, brain based learning, human centric education into every classroom and boardroom in the country. Let's welcome. So, hello, sir. Welcome to Beyond the Classroom podcast. Thank you very much for inviting me, and I feel privileged to be part of this program. I'm truly honored to have you on this show today, and I believe that our audience will get so much insights, so much learning from your experience. My pleasure. I'm so excited for this. Welcome, sir. So, sir, according to a recent study that was conducted in July 2025, so a very famous company in India had laid more than 12,000 employees. और वो जो employees थे, they were of senior and mid-senior levels. Why? Because of artificial intelligence. Because AI can do their work smarter, better, and with more precision. And sir, you work with many schools and colleges, universities. So where you have seen that disconnect between the student and the education system, कि जहाँ पे वो हम उनको फ्यूचर के रिगार्डिंग उनको प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. So जो 12,000 लोगों की बात है, it was done by TCS. Yes. And not only TCS, you see company around the globe. They are doing it for one or the other reason. और हर बार जब भी लोगों को कम करती है उसका एक नया एक्सक्यूज होता है। तो इस बार जो एक्सक्यूज दिया गया है, जो कारण बताया गया है, वो बताया गया एआई की वजह से। राइट. मुझे लगता है कि इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं और जो इंडस्ट्री की नीड है, ये दोनों बहुत अलग अलग हैं। ओके. मेरा ये मानना है कि फॉर एग्जांपल यू सी लास्ट कई सालों का पैटर्न, अभी भी बच्चे क्या बात कर रहे हैं कि सर हमें क्या पढ़ना है, कंप्यूटर साइंस, और सबजा ले ऑफ कहाँ हो रहे हैं, आईटी कंपनी के अंदर। एब्सोल्युटली. तो मुझे लगता है कि जो कोर पढ़ाई थी वो पहले भी कामयाब थी, आज भी कामयाब है और आगे भी कामयाब रहेगी।
नंबर वन। नंबर टू, मुझे लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसने ये समझाया है कि भैया यदि आपने मेडिकल लिया तो आप इंटेलिजेंट हो, आपने इंजीनियरिंग लिया तो आप इंटेलिजेंट हो। पर मैं विद माई लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ इन एजुकेशन, एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री, मुझे लगता है कि जब आप पीसीबी लेते हैं तो आपके पास 48 करियर्स हैं। हम्म यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो आपके पास 57 करियर्स हैं, और यदि आप ह्यूमैनिटी लेते हैं तो आपको 68 करियर हैं टू चूज फ्रॉम। अब बात यह है कि जो रियल वर्ल्ड की बातें हैं न तो पेरेंट बच्चों को बताते हैं और ना ही स्कूल एजुकेशन बताता है। अभी फॉर एग्जांपल इन इन माय स्कूल वन कंपनी केम एंड दे सेज कि सर वी वांट टू स्पीक अबाउट करियर। दिस इज वेरी गुड। और मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि क्या बातें हो रही, तो मैं खुद क्लास में बैठा। सो द ओनली थिंग दे स्पोक अबाउट इज अबाउट देयर कॉलेज एंड कि आपको यदि जीवन में रोटी खानी है, आगे बढ़ना है, तो खाली आप इंजीनियरिंग करो, उसके अलावा सारे कोर्सेज बेकार है। सो आई स्टॉप देम इन बिटवीन। आई से डोंट गिव वन साइडेड नॉलेज टू द चिल्ड्रन। सो मेरा ये मानना है कि चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एकेडमिक्स और इंडस्ट्री को समझना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, आपकी क्या नीड है और इंडस्ट्री की क्या नीड है, मुझे लगता है ये गैप को ब्रिज आना चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि क्लास 8 ऑनवर्ड्स आप बच्चों को छुट्टियों में घर में मत बिठाओ। ओके आप बच्चों को छोटा छोटा काम करने के लिए आप मोटिवेट करिए, सो दैट दे कैन गो टू नियर बाय ऑफिसेस, दे कैन लर्न हाउ टू डू बैंकिंग, दे कैन लर्न हाउ टू डू स्मॉल थिंग्स। उनको पता लगे चेक कैसे जमा करना है, चेक लिखना कैसे है। यदि वो दिन भर मोबाइल पे सारा काम कर सकते तो मुझे लगता है ये भी काम कर सकते। और मुझे लगता है छोटी छोटी बातें यदि बच्चों को हम राइट डायरेक्शन में पढ़ाएंगे, वो उनके करियर में वैल्यू एड करेगा। डेफिनेटली सर। और जो आप ये छोटे छोटे स्किल्स बता रहे हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं। लाइक जैसे बैंक में जाके हाउ टू डिपॉजिट अ चेक, पासबुक्स में क्या एंट्री होती है, या बैंकिंग का एक सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो दैट्स अ रियली गुड टिप। जो भी एपिसोड देख रहे हैं, आई थिंक अगर आपको आता है तो इट्स वेरी गुड थिंग, अगर आपको ये नहीं आता है तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स, बिकॉज सारी चीज़ें शायद ऑनलाइन हो जाती हैं, बट आपको ये बैंकिंग सिस्टम को एक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये खाली बैंकिंग नहीं है सर। और भी बहुत चीज़ें। आप जब बच्चों को कहीं बाहर भेजते हैं, दे लर्न कि यार उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती पर्सन है। डेवलपमेंट। उनको पता रहता है बात कैसे करनी है, Right. उनको पता रहता है आउटर वर्ल्ड बिहेव कैसे करता है। आपने कहा चेक कहाँ डालो, बोले वहां चल जा। लिखना कैसे, बोले यहाँ बैठ के। उनको एक पेशेंस बढ़ेगा। अभी हमारा जो टाइम था, जो आज का यूथ है, इसमें जो चैलेंज क्या है कि दे डोंट हैव पेशेंस, बिकॉज हर चीज क्लिक ऑफ अ बटन अवेलेबल है। राइट। सो मुझे लगता है कि चाहे आपका परिवार छोटा है, चाहे आपका बड़ा है, चाहे आपके घर में कम पैसे हैं या आपके पास बहुत पैसे हैं, हो सकता है आपके पास 1000 स्टाफ हो सब काम करने के लिए, पर मुझे लगता है जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो आपको बाजार में जाने से ही पता लगेंगी कि आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं पढ़ के आया और काम करने लगा तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो। मैंने कहा जी उससे क्या होगा? बोले यू वॉच पीपल्स एक्सप्रेशन। मेरे को नहीं समझ में आया, पर चूंकि हमारे ज़माने में वन वे ट्रैफिक होता था, बाबूजी ने कह दिया हमको जाना था, तो हम चले गए। तो वहाँ पर 4-5 दिन के बाद में ये समझ में आ गया कि बॉस ये 500 का पेट्रोल भराएगा, ये 200 का पेट्रोल भराएगा, या ये फुल टैंक कराएगा। मुझे भी नहीं समझ में आया मैंने कैसे सीखा, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा। इसलिए जब मैंने मेरी आगे पढ़ाई भी करी तो फेशियल एक्सप्रेशन पे करी। मुझे लगा कि लोगों के चेहरे जो है ना आपको सब कुछ बताता है। सो यू नीड टू गिव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू योर चिल्ड्रन एंड दैट इज हाउ यू लर्न। आप मार्केट में छोटी छोटी बातें, सब्जी लेने गए, आप मॉल में गए, आपने राशन लेना शुरू करा। मुझे लगता है कि बच्चे जो है ना, बच्चों को आप अपने साथ एंगेज करिए, वो सबसे बड़ी पढ़ाई है। Definitely, sir. I think a very good tip to all the listeners. Also, sir, there was a report last year published by NDTV
जिसने ये बताया कि AI विल ऑटोमेट द 50% ऑफ द वर्क वट एवर इज बिंग डन टूडे। एंड अगर आप डेटा भी उठा के देखें, सो लास्ट ईयर 38% IITians वर अनप्लेस्ड। सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो IIT ड्रीम होता है कि IIT में गए हैं तो वी हैव दैट जॉब सिक्योरिटी। सो इज दैट रियली ट्रू इन दिस टाइम वेयर AI इज लाइक एक्सपैंडिंग इन ऑल होराइजन्स? सर ये ट्रू कभी भी नहीं था, ओके। न कल था, न आज है, न जो बीत गया कल उसमें था। आप जाएं कहीं भी, मुझे एक बात बताइए सर, आज दिल्ली की बात करें तो ड्यू में एडमिशन के लिए आपको कितने परसेंट मार्क चाहिए? अबव 95 मिनिमम। 95, 98, 99 बराबर है ना। तो बच्चा मेहनत करके आई ड्यू में जाता है, जब वो निकलता है 90% बच्चे 60% से कम के निकलते हैं, बिल्कुल। तो 40% मार्क कहाँ गए? तो बात ये नहीं कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया, बात ये कि उस इंस्टीट्यूट में आपने कितना एक्सेल किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इंटेलिजेंस आपको एंट्री दिलाती है, काम आपको आपका व्यवहार दिलाता है। मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स को, हमारे एकेडमिक सिस्टम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमें बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि वो अपनी बात को प्रेजेंट कैसे करें। हैविंग नॉलेज एंड हैविंग ऑथेंटिक नॉलेज, इज देयर डिफरेंस। इज लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि आज गूगल की वजह से, यूट्यूब की वजह से, या और बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिसके ऊपर आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए मिल जाएगी। राइट। बट क्या आप अपनी बात को जब मौका पड़े तो आप बोल पाते हैं? आई फील दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, नंबर वन। नंबर टू, आपका कहना है कि जॉब की चैलेंज है। मैं एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का आदमी हूं, मैं कहता हूं इस समय नौकरी की चैलेंज नहीं, लोगों का इज अ बिग चैलेंज। फाइंडिंग द राइट रिसोर्स फॉर द राइट पोजीशन। इस समय आप मानेंगे नहीं सर, यू गो टू एनी फैक्ट्री, यू गो टू एनी इंडस्ट्री, यू गो टू एनी शॉप, आप किसी भी प्रोफेशन में जाइए, हर हर ऑर्गेनाइजेशन में आदमी की जरूरत है। बिल्कुल। आज ना अच्छा कुक मिलता, ना अच्छा प्लम्बर मिलता, ना अच्छा टाइपिस्ट मिलता। आप ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर सबकी देख लीजिए। इस समय नौकरी चैलेंज नहीं है, लोगों का चैलेंज है। तो आप ऑफिस में आ जाओ, ना आपको टाइपिस्ट मिलते, ना आपको सेल्स के लोग मिलते, ना आपको प्रोक्योरमेंट का कोई आदमी मिलता, ना मार्केटिंग का मिलता। आज यूथ आता है, आपकी क्या सवाल है? क्या पैकेज होगा, क्या फैसिलिटी होगी, क्या छुट्टी होगी? अब मुझे बताइए कि उसके पास एक्सपीरियंस क्या है? खाली कि आप आईटी पढ़ गए, या आप आईएम पढ़ गए, या आप यहाँ के किसी और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ गए, या आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ गए। खाली स्कूल का बैनर या कॉलेज का बैनर तय नहीं करता है कि आपकी क्या कैपेबिलिटी। तो मुझे लगता है कि जब तक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक यूथ आज भी स्ट्रगल करेगा, कल भी स्ट्रगल करेगा। और एआई की जहां तक बात है, तो आप देखिए जितना काम एआई ने कम किया है, तो बाकी फील्ड भी तो इतनी बढ़ रही है। बिल्कुल। आज एविएशन सेक्टर इतना बढ़ रहा है, आज कंस्ट्रक्शन कितना हो रहा है, आज इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो रहा है, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर कितना डेवलप हुआ है, आज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज कितनी देश के अंदर आई है, आज स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना बड़ा है। तो क्या खाली एक ही काम रह गया कि खाली सबने बैठ के कंप्यूटर पे काम करना है? बिल्कुल। आज आप सोचिए, आपके घर में एक ब्लिंकिट छोटा सा एग्जांपल है, कितने लाख बच्चों को उसने रोजगार दिया। अब वो भी कहे जी मैं तो कंप्यूटर पे डिलीवरी कर दूं, नहीं हो सकती ना। इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी फ्रॉम दैट शॉप डार्क टू स्टोर योर से। होम। बिल्कुल। तो इसमें क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी? वो तो इंडिया का स्टार्टअप है, इंडिया का इकोसिस्टम है। ब्लिंकिट दुनिया में कहीं नहीं अदर देन इंडिया। तो राइट। उसने क्या करा? जो एंटरप्रेन्योर है उसने गैप एनालिसिस करा कि यार घर में हर छोटे मोटे सामान के लिए टाइम लगता है, तो मैं कैसे उसको 10 मिनट में पहुंचाऊं। कितने लोग उसके आदी हो गए हैं विद इन नो टाइम कि साहब चाय बना रहे, चाय पत्ती नहीं है, ब्लिंकिट फोन कर Blinkit। दो। अच्छा खाना बना रहे, प्याज नहीं है, प्याज प्याज ऑर्डर कर order दो। अच्छा ये नहीं है, हल्दी नहीं है, हल्दी ऑर्डर कर दो। कितनी डिपेंडेंसी बढ़ गई विद नो टाइम। राइट। सो मुझे लगता है कि यदि आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि बॉस मैं खाली कंप्यूटर पढ़ूंगा, कंप्यूटर साइंस पढ़ूंगा, तो ही दुनिया का जीनियस बनूंगा,
तो ही दुनिया का पैसे वाला बनूंगा, तो मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है सर, आई एम स्पीकिंग अंडर करेक्शन, कि मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन टाइम है, स्पेशली भारत के लिए, जहाँ पे लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है, जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी है, बैंक आपको पैसे देने के लिए तैयार है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आप आगे बढ़ें, दुनिया को एक्सप्लोर करें, इसमें से अपॉर्चुनिटी खोजें और काम करें। डेफिनेटली सर, बहुत अच्छी टिप आपने दी कि नॉट चेजिंग द आईआईटी ड्रीम बट गेटिंग इनटू राइट करियर एंड थिंकिंग अबाउट कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और ये एक प्रॉब्लम नहीं, और ये प्रॉब्लम क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आगे वाली जनरेशन के ऊपर। तो आई थिंक उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए आज की जनरेशन को। एंड वन नीड टू बी प्रैक्टिकल ना। हम्म। आज आप देखिए, इतने कार शोरूम्स हैं, हम्म। सबको आदमियों की जरूरत है। राइट। मैकेनिकल भी चाहिए, सेल्स का भी आदमी चाहिए, बड़े इंजीनियर्स भी चाहिए, उसमें एआई भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, बिलिंग भी आ गया। आप देखिए ना सर, छोटे, आज आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तामझाम तो पूरा चाहिए ना, लोग तो सब चाहिए, तब आप कंपीट कर पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जॉब इज नो शॉर्टेज, खूब अपॉर्चुनिटीज हैं सर। हम तो ड्रोन इंडस्ट्री में आए, एग्रीकल्चर में काम करने का मौका मिला। इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, आप सोच भी नहीं सकते। सो देर इज बिजनेस, देर इज अपॉर्चुनिटी, देर इज जॉब, देर इज बिजनेस, there are ways of making money, and it is full as of date. One just need to take out courage and explore and do things. लोगों की सुनी सुनाई बात पे पेरेंट्स काम नहीं करें। मेरा पेरेंट्स से निवेदन है कि वो खुद जाके एक्सप्लोर करें, खुद समझें, और फिर अपनी बात बच्चों पे नहीं थोपें कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो मेरा बच्चा ये कर ले, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया मेरा बच्चा बने, मैं इंजीनियर बन गया मेरा बच्चा इंजीनियर बने। नहीं यार, आपके सामने अथाह समुद्र है, एंड अलाउ योर चिल्ड्रन टू पेंट देयर लाइफ। राइटली। दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि आज की जो पेरेंटिंग है, एज अ करियर कोच या एज अ काउंसलर, मुझे लगता है बच्चों से काउंसलिंग से ज़्यादा पेरेंट की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। मुझे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, यदि मैं मेरी बात बताऊं, तो एक बार मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी आप इतने तकलीफ में रहे, आप हमें सब कुछ अलाउ कर देते हो, जब आपकी बारी आती है तो आप को शर्ट दिलाते हैं, आप इतना मना करते हो, और हमारे लिए 2 मिनट में आप कर देते हो। तो उन्होंने कहा बेटा, मैं गरीब पैदा हुआ ये मेरा भाग्य, तू सोने की चम्मच से पैदा हुआ ये तेरा भाग्य। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ मेरे फादर को कि ही होल्डेड आवर हैंड्स लाइक दिस। उन्होंने कभी हमसे कंप्लेंट नहीं करी, यार तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुम कहते नहीं यार तू बहुत अच्छा कर सकता है, नहीं यार तू बहुत आगे बढ़ सकता है, देख यार तुझे सामने बहुत मौका है। एंड ही ऑलवेज मोटिवेटेड अस, एंड ही हैड सीन वेरी टफ टाइम इन हिज लाइफ। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं देखता हूँ कि मैनी पेरेंट दे कीप ऑन कर्सिंग ऑल द टाइम। मैनी पीपल व्हेन दे कम टू मी फॉर काउंसलिंग, बच्चों के साथ में, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, वो ये नहीं सुनता, ये नहीं करता। मुझे लगता है बच्चों को मोटिवेट करना इज अ बिग आर्ट। उनके साथ स्टोरी टेलिंग करिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ अपने मन की बात बोलिए, उनकी बात सुनिए। अब जैसे ही मेरी बात जो सुन रहे हैं, कई लोग कहेंगे बच्चे तो हमारी सुनते ही नहीं, वो तो हमारे साथ बैठना नहीं चाहते हैं। आप ही देखो क्यों नहीं बैठना चाहते हैं यार। पेरेंट से बड़ा लीडर, पेरेंट से बड़ा गाइड कौन हो सकता है किसके लाइफ में। मैं ये नहीं कहता हूं कि राइट कौन है रॉन्ग कौन है, पर मुझे कहता है कि वी नीड टू वर्क हार्ड। आई हैव यंग चिल्ड्रन एंड मेनी टाइम दे डोंट एग्री विद मी, बट डजंट मीन आई सरेंडर और आई कीप ऑन फाइटिंग विद देम। एक दिन 2 दिन फिर नॉर्मल हो जाते हैं। सो मुझे लगता है जो आर्ट ऑफ फॉरगिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर डॉक्टर नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीकन थे, तो ही वॉज इन जेल फॉर 27 ईयर्स। वो जब जेल से बाहर आए तो उनको लोगों ने कहा कि साहब आपके ऊपर जेल में इतना मुश्किल हुआ, लोगों ने इतना तंग करा, आपके साथ इतना बुरा किया, आप उन लोगों के साथ अब क्या करोगे, आप तो प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने एक ही वर्ड कहा, आई विल फॉरगिव देम। तो मुझे लगता है लाइफ इज ऑल अबाउट फॉरगिविंग
पीपल अराउंड यू टू मेक नॉइज इज वेरी इजी. राइट. आप हर चीज में कंप्लेंट देख सकते हैं. लाइट अच्छी नहीं, आप लोगों को देखो ना, पानी नहीं आ रहा, पानी आए तो मुश्किल, बरसात नहीं आई तो मुश्किल, ऐसा हुआ. मुझे कहता लाइफ इज टू ब्यूटीफुल टू मेक नॉइज. आई थिंक वो बहुत ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा. सो सर, कमिंग बैक टू टॉपिक रिलेटेड टू वी आर डिस्कसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुड वी ऑल यूज AI एज अ कॉम्पिटिटर या AI एज अ कंपेनियन? कंपेनियन ना सर, कॉम्पिटिटर कैसे हो सकता है? न तो सारा काम आपका यही कर सकता है. आपको जहां जहां मदद लगे वहां लीजिए. बाकी तो काम तो आपका अपने आपको ही करना पड़ेगा ना. राइट. जहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आप वो ठीक कराइए. आपको कुछ वर्ड नहीं मिल रहा है, वो ठीक कराइए. आपको सेंटेंस नहीं मिल रहा है, वो ठीक कराइए. आपको कोई नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप एआई से करिए. एआई के नॉट रिप्लेस यू 100%. डेफिनेटली. भैया आपने अपने घर में कुक रखा, क्या आपको 100% माँ को रिप्लेस कर सकता? नहीं कर सकता ना. वो खाना बना सकता है, साफ सफाई कर सकता है, बर्तन कर सकता है, कपड़े कर सकता है, घर को ठीक रख सकता है. माँ तो माँ ही है ना. माँ तो वैसे ही हमने इसको समझना है भाई, वो हमारा एक समय है, हमने उसको यूज करा, जब काम खत्म आप अपने धंधे लग गए. और मेरे को लगता है सर है कि जो पर्सनल ह्यूमन टच होता है वो AI कभी रिप्लेस नहीं कर Yes, सकता. और वो जितनी भी जॉब्स हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ जॉब्स जो रिडंडेंट टास्क में होती है AI रिप्लेस वो कर सकता है, बट जहाँ पे एक ह्यूमन टच चाहिए, जहाँ पे एक ह्यूमन का इंटरवीन चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो वहाँ पे तो जॉब्स अभी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो आई थिंक वहाँ पे देखना चाहिए स्टूडेंट्स को. डोंट थिंक लाइक दिस, इफ AI इज एंटर्ड इन इंडस्ट्री सो AI विल डिस्ट्रॉय ऑल द जॉब्स. नो, AI will take some jobs, but yes, if you are equipped, if you are skilled, so there are a lot more opportunities in the world. नहीं ऐसे जैसे कंप्यूटर आए, जैसे आपने कहा जी नौकरियां खत्म हो जाएंगी, हुई खत्म बिल्कुल. और बढ़ गए. आज आपके जिस मार्केट में बैठा हूं, ये सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है. राइट. तो मेरे कहने का मतलब है, कोई चीज से कमी कुछ नहीं होती सर. आज आप देखिए दिल्ली में मेट्रो आई, बोलिए ट्रैफिक कम हो जाएगा. ट्रैफिक कम हो गया और बढ़ गया. और बढ़िया. आज बस सिस्टम इतना अच्छा है, मेट्रोज इतनी आ गई, कितना वाइड नेटवर्क है, फिर भी देखो काम बढ़ता जा रहा है. तो कैसे लोग बढ़ेंगे तो काम भी बढ़ेगा. आपकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से 140 150 करोड़ हुई ना, 100 करोड़ वापस थोड़ा ना हो गई है. तो कहने का अर्थ है कि लोग बढ़ेंगे तो काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी तो आपको उसको यूज करना आना चाहिए. So, sir, according to a recent study by World Economic Forum, emotional intelligence will be the top 10 skills by next year. But if you see in our education system, most of schools are still prioritizing memorization and rote learning. So, what do you think? What's the key difference between the IQ and EQ, and why EQ becoming more valuable than ever? तो सर एक बात याद रखिए, बच्चे स्कूल में खाली पढ़ने के लिए नहीं आते, Right. क्योंकि पढ़ाई तो हमसे बेटर गूगल गुरु करा देगा. YouTube पे बहुत वीडियोस यूट्यूब पे हैं. बहुत कुछ है. कोई भी टॉपिक लीजिए, आपने एनर्जी डाला क्लास 6 का टॉपिक, जैसे आप यूट्यूब डालेंगे तो आपको पीपीटी मिल जाएगा, आपको एनिमेशन Full मिल explain जाएगा, आपको videos. इसमें सब कुछ मिल जाएगा. तो वो तो घर पे बैठ के पढ़ सकता है. पर बच्चा स्कूल में इसलिए आता है क्योंकि वो अपने टीचर्स के अंदर अपना लीडर देखता है. वो आकर कनेक्टिविटी देखता है, वो आके वहां पे इमोशनल कनेक्ट देखता है. करेक्ट. आप देखिए कि जो स्कूल का टीचर है वो बच्चे के बारे में सब कुछ जानता है. उससे घर के क्या हालात हैं, उसका कनेक्ट घर में कैसा है, उसका इमोशनल तरीका क्या है, वो पढ़ता कैसा है, वो बदमाश कितना है, उसकी हरकतें कैसी हैं. मतलब एक स्कूल टीचर अपने बच्चों के साथ आत्मा से जुड़ा होता है, मन से जुड़ा होता है, दिल से जुड़ा होता है. तो याद रखिए स्कूल के अंदर बच्चा क्यों आता है, सो दैट ही कैन कनेक्ट इमोशनली विथ एवरीवन. एब्सोल्युटली. और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि आईक्यू अगेन आपको एंट्री दिला सकती है, काम आपको तो आप देखें कितना गैप आ गया. आप यदि पेरेंट से बात करिए, बच्चे उनसे बात नहीं कर रहे. हमने क्या करा कि भैया तो अमेरिका जाएगा बहुत अच्छा पढ़ेगा, तो जर्मनी जाएगा बहुत अच्छा पढ़ेगा, तो यूके चला जाए, तो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो कनाडा चला जाए. उससे आप देखिए सोसाइटी में गैप कितना आ गया. बच्चे कहते हैं हम नहीं आना चाहते, पेरेंट कहते हैं हम नहीं जाना चाहते. तो मुझे लगता है हमारा जो भारत का जो सोसाइटी है, इट इज मोर ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट सोसाइटी. आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते, राइट. एक आदमी बहुत पॉपुलर है, इसलिए नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है,
इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो इमोशनली सबसे बहुत अच्छा कनेक्टेड है, वो वन ऑन वन कनेक्शन आता है, वन ऑन वन कनेक्शन connection. है। Right. आप देखें एक की ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पटती है, एक की ऑर्गेनाइजेशन में किससे पटती है, Hmm. एक बहुत अच्छा काम करने वाला है बट ही इज Correct. वेरी एरोगेंट, ही इज वेरी टफ, हिज एटीट्यूड इज वेरी रॉ, पीपल डोंट लाइक हिम। Absolutely. सेम विद टीचर, सेम विद प्रिंसिपल, सेम विद एजुकेशन सिस्टम। एक टीचर है जो बहुत पॉपुलर है Hmm. नॉट बिकॉज वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए बिकॉज कनेक्ट बहुत अच्छा है उसका बच्चों कनेक्शन बच्चों से बहुत बहुत अच्छा है। राइट। तो एक टीचर को जब क्लास, मैं बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड स्कूल, हम्म। तो थर्ड ईयर ऑफ ऑपरेशन मुझे मेरे प्रिंसिपल का फोन आया और टीचर ने कहा कि सर 2 बच्चे अगली क्लास में जाना नहीं चाह रहे हैं। ओके, बाय। मैंने कहा ऐसा क्यों, ऐसे हो सकता है, हम तो बहुत एक्साइटेड होते थे। हम्म। तो आई विजिट माई स्कूल ऑन सैटरडे, सो आई वेंट देयर एंड मैंने कहा मैं उनसे मिल सकता हूँ। हम्म। बोले हाँ सर। सो मैंने बच्चों को बुलाया, तो मैं स्कूल प्रिंसिपल टीचर थी, मैंने उनसे पूछा कि बेटे तुम अगली क्लास में क्यों नहीं जाना चाहते। बोले हमारी मैम बदल जाएगी ना सर। ओके, वो मैम के साथ बहुत पर्सनल कनेक्ट तो होगा बच्चों वो का। इमोशनल कनेक्ट था या इंटेलिजेंट कनेक्ट था? इमोशनल कनेक्ट। इमोशनल कनेक्ट था। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आजकल क्या हो गया है कि देयर इज लॉट ऑफ इमोशनल डेफिशिएंसी एवरीवेयर। हम्म। घर में जाते हैं, हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, तो उनको कहाँ टाइम मिला। पहले क्या था कि आपका वर्क अलग था और घर अलग था। राइट। अब तो वर्क अब फ्रॉम क्या हो होम। गया, आपका घर और होम एक ही हो गया। आप घर को भले ही ऑफिस नहीं ले जा पा सर, पर आप ऑफिस को तो घर घर ले- लाना ही पड़ेगा। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस इन मॉडर्नाइजिंग वर्ल्ड। आपको यदि आपके बॉस का फोन आए 9 बजे 10 बजे, आप मना कर सकते हो नहीं बात करूंगी या मैं नहीं करूंगी, वो कहेगा गो टू हेल। सो मेरा ये कहना है कि जो इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है घर पे भी हम्म। और ऑफिस में भी, यदि इसको हमने नहीं ब्रिज इन करा, सो आपको स्कूल में भी प्रॉब्लम आएगी, घर में भी प्रॉब्लम आएगी, और आपको वर्क कल्चर में भी जो है यू विल फाइंड इट वेरी टफ इन टाइम टू कम। और आप देखिए ना, आप एक मूवी देखते, कुछ भी छोड़ा इमोशनल सीन आता आप रोने लगते, या कोई भी इमोशनल बात आती है आप उससे जुड़ जाते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। राइट। हमारे अंदर पत्थर थोड़ी लगा, दिल ही तो लगा हुआ है, और वो दिल इमोशन से कंट्रोल होता है, ना कि आपके इससे। और चूंकि अभी कोई, पहले क्या था, जॉइंट परिवार थे, क्लोज निट सोसाइटी थी, एक दूसरे से बात करके मन की बात निकल जाती थी। करेक्ट। आज आप रोड पे गुजरते थे तो राम राम थी, नमस्ते थी, सलाम वालेकुम था, बातचीत थी। अब सब बंद हो गया ना। हर आदमी आप देखिए दिन भर मोबाइल में लगा हुआ है, उसकी गर्दन नीचे, पास से कौन गुजर रहा है, पास से कौन आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। आप ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, मेट्रो में जाइए, प्लेन में जाइए, एवरीवेयर दिस द सिचुएशन। सो आपके चेहरे का ग्लो ही खत्म हो गया। इनर वर्ल्ड में सब हो रहा है। सब आप क्लोज Close world में। एंड देयर इज नो वेंट जहां पर आपका वो जो मन का गुबार है वो निकल सके। So, sir, how school start teaching EQ meaningfully? So, what are your views on this? सो मुझे लगता है कि जो आप लेसन प्लान करते हैं, जो आपके पढ़ाने का तरीका है, इट हैज टू लीड बाय एग्जांपल। Okay. मुझे लगता है कि टेलिंग इज नॉट टीचिंग, Hmm. टीचिंग इज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग। Right. कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके इर्द गिर्द एक स्टोरी बनाकर आप बच्चों से बात करिए। आपके घर में भी जब आप बच्चों के साथ होते हैं, उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। Absolutely. आज का बच्चा ये नहीं कहता कि मम्मी या पापा मेरे साथ 5 घंटे बैठो, वो कहता है मेरे साथ आधे घंटे बैठो, पर मेरे बन के बैठो। दैट इज हाउ यू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योर चिल्ड्रन। एक बात और ध्यान रखिए सर, जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि आप जब अपने बच्चों से बात करते हैं तो उनको फॉल्स प्रॉमिस मत दीजिए। As in? एज इन फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कहा कि जी मुझे ये चाहिए, Hmm. आप टालने के लिए क्या कहते हैं, अच्छा मैं अगले हफ्ते दिलाऊंगा। और या फिर कई बार ये भी कहते हैं कुछ पेरेंट्स, इफ यू अचीव this % ऑफ मार्क्स, तो वो चीज से सही नहीं, होता है? मेरा कहना क्या रिवॉर्ड है कि सिस्टम। आपको जो भी बनाना, आप उसको फॉल्स प्रॉमिस मत। आपको क्या लगता है एक हफ्ते बाद भूल गया, तो मुझे लगता है एज अ पेरेंटिंग टिप्स 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो कुछ मांगा उसको तुरंत मत दीजिए। ओके। आप कहीं देखिए 30th को मेरी सैलरी मिलेगी, 2 को संडे आ रहा है, हम मॉल में जाएंगे एंड देन आई गेट यू दिस, और आई गो टू द मार्केट एंड देन गेट यू दिस। आपको क्या लगता है कि यार वो तो भूल जाएगा? वो भूलेगा नहीं आपकी बात।
आप उसको फिर 29-30 को याद दिलाइए कि देख मेरे को कल सैलरी मिलेगी, आई प्रॉमिस यू दैट आई विल टेक यू इन सेकंड एंड आई विल गेट, और उसके बाद जाके दिलाइए। आपके बच्चे का पेरेंट के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ईक्यू डेवलप होगा। आपने उसको टालने की कोशिश करी, क्योंकि आप सीनियर हैं, आपकी बात मान तो जाएगा, पर आपको बाद में ही विल लूज फेथ इन यू, ही विल लूज कॉन्फिडेंस इन यू, एंड यू अननेसेसरी बिकम अ बैड पेरेंट। राइट। दूसरा मुझे लगता है पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट सेक्रीफाइस। ओके। आप हर पेरेंट मुझे कहता है जी बच्चे मोबाइल नहीं सुनते जी, हमारे नहीं छूटते। मैंने कहा आप घर जाके छोड़ते हो? बोले नहीं। तो मैंने कहा फिर वो आप ही कॉपी करते हैं। बिकॉज अब पेरेंट स्टूडेंट्स सी पेरेंट्स एंड यस। वो उनके बड़े लीडर्स हैं and वो उसी एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे जो वो घर में तो देखेंगे। चिल्ड्रन डोंट डू व्हाट यू से, दे डू व्हाट यू डू। राइट। सो यू नीड टू वॉक द टॉक। आई फील दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली सर। बट सर आपका आज की जनरेशन को लेके लाइक जेनजीज एंड जेन अल्फास को लेके व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट, बिकॉज दिस जनरेशन इज स्लाइटली इम्पेशेंट बिकॉज इनको जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो बहुत अर्ली एज में मिल गया है। ठीक है, मेरे को पर्सनली ध्यान है जब मेरे को एक अपना पर्सनल फ़ोन मिला था, आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड, बट नाउ यू सी दे हैव टैबलेट्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स फ्रॉम वेरी अर्ली तो एज। ये तो आप ही दिला रहे हो ना, आप ही एक्सेस दे रहे हो। आप नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। राइट। आपने क्या करा, आपने कंपेयर करना शुरू कर दिया। उसका बेटा देता है ना, वो तेरी मौसी देती है ना, तेरी बुआ के बच्चों के पास है ना। सो योर बच्चा थोड़ा ना आपके पास आ रहा है, एक साल का 2 साल का बच्चा कौन एक्सेस दे रहा है? आप ही तो दे रहे हो ना। तो इसके लिए आप ही तो जिम्मेदार हो ना, क्योंकि आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। Absolutely. And sir, what is your tip to young parents on this? Keep away your children from mobile phone. For that, you have to be away from mobile phone when you are at home with them. I think this is a very important tip. अगर आप घर पे अपने बच्चों के आगे फ़ोन्स को यूज़ करेंगे सो दे विल सी यू एंड उनको भी लगेगा कि हाँ फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करना इज़ वेरी नॉर्मल। सो अगर आपको उनको फ़ोन से बचाना है, उनका स्क्रीन टाइम कम करना है, देन यू हैव टू यूज़ लेस फ़ोन इन फ्रंट ऑफ देम। 100%। सर आप देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, रिसर्च ये कहती है कि यदि 4-5 साल का बच्चा मोबाइल फोन यूज कर रहा है तो उसके हाथ के सारे नर्व सिस्टम खराब हो जाता है, उसकी मेमोरी पे इतना इफेक्ट है। आप देखिए ना सर, न्यूरो के कितने केसेस बढ़ गए। राइट। क्यों बढ़े यार अचानक? क्योंकि आपने लाइफस्टाइल खराब कर दी। आपने पिज्जा बर्गर मैकडॉनल्ड्स खिलाना शुरू कर दिया, आपने सॉफ्ट ड्रिंक का एक्सेस इतना दे दिया, आपने जंक फूड को ज्यादा ज्यादा प्रमोट कर दिया बजाय कि घर के, क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है। बाहर का खाना मंगा लेते हैं। मुझे याद है कि घर में हमारे 10 मेहमान भी आए तो माँ घर का खाना मंगाती थी। अब तो आपके घर में एक मेहमान आया, दाल मखनी बाहर की, पनीर बाहर की, रोटी बाहर की, तो वो कनेक्शन ही कहाँ बैठा? आपने तो शिष्टाचार निभा दिए। सो और फिर शब्दों का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू आर यूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, वर्ड्स कैन चेंज योर ब्रेन। इट सेज वर्ड्स कैन हर्ट यू और वर्ड्स कैन हील यू। ओके। बात यह है ना सर कि आपका जो बातचीत का तरीका है, आपका जो खान पान का तरीका है, आपका जो मिलने मिलाने का तरीका है, इसको आप ओरिजिनल रखिए, ना कि आर्टिफिशियल। एक पेरेंट गाड़ी में जा रहे हैं, 2 बच्चे पीछे बैठे हैं और वो बुआ से मिलने जा रहे, रास्ते पर बुआ की बुराई करेंगे। फिर वहां जाके बोलेंगे अरे तू बुआ से बात नहीं करता, अरे तू उससे हंस के नहीं मिल सकता। वो बच्चा बोलेगा साले रास्ते पर तो गालियां देते आए और यहाँ के हमें बता रहे। सो यू कैन नॉट फेक द टॉक ऑल द टाइम। यस, वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, नहीं वो कहता है बड़े है, वो वहीं से फिर वो धारणा बना ली थी उन्होंने कि देखो रास्ते में तो ऐसे कराते हैं और मुझे ज्ञान दे रहे हैं। राइट। सो मुझे लगता है स्टूडेंट लीड बाय एग्जांपल। यू नीड टू बी ओरिजिनल विद योर चिल्ड्रन। एंड आपको क्यों फेक होना है यार? डेफिनेटली। लाइफ इज टू सिंपल, व्हाई यू टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड? Absolutely, sir. Sir, I have seen most school still follow like the factory system. Rigid schedules, same curriculum, and less counseling. So how this इसे स्टूडेंट्स को हम फ्यूचर के लिए कैसे प्रिपेयर करें? काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, बिल्कुल।
तो उसमें एक लड़का जा रहा था और उसको गेट कीपर ने रोका। ओके। उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले जी अंदर जा रहा हूँ। हम्म। बोले भाई तुम कौन हो? बोले यही तो मैं जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। ये जो कन्वर्सेशन था उस लड़के का और गेट कीपर गेट। का, उसके पीछे आचार्य चाणक्य उनकी बातें सुन रहे थे। उसने कहा ये तो कमाल हो गया। लड़के वॉचमैन कहता कहाँ जा रहे हो? बोले अंदर जा रहा हूं। बोले तुम कौन हो? बोले मैं यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। इट मेड आचार्य चाणक्य टू थिंक कि व्हाट डिफरेंट आई शुड डू। तब उन्होंने तय किया कि इस विश्वविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में गेट कीपर से लेके कुलपति तक काउंसलर होगा। It took 2 years for Acharya Chanakya to make everyone counselor in that university. That's why Nalanda Vishwavidyalaya has become Nalanda Vishwavidyalaya. मुझे लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम कहता है कि साहब एक वीकली काउंसलर बुला लो, वो बैठेगी, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है उस स्कूल का हर एक आदमी जो स्कूल से जुड़ा हुआ है वो अपने आप में काउंसलर है। वो बच्चों की लाइफ बना सकता है और वो बच्चों की लाइफ बिगाड़ सकता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस बच्चे को जीवन भर याद दिलाता है, और किसी बच्चे के साथ कोई एक्सपीरियंस बचपन में खराब हुआ, वो जिंदगी भर उस बैड एक्सपीरियंस के साथ में जिएगा। राइट। एक स्कूल की घटना घटती है, आप देखिए कितना बवाल हो जाता है, बिल्कुल। बिकॉज एक्सपीरियंस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है व्हेन चिल्ड्रन कम टू स्कूल, वी नीड टू इन्वॉल्व अवर सेल्फ, वी नीड टू गेट गुड काउंसलिंग टू दैम। हमें उनकी हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। हमें लगता है कि उनके साथ हमें क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। मुझे लगता है कि जो पढ़ाने का तरीका है और पढ़ने का तरीका है, पिछले 10 सालों में बहुत फ़र्क आया। कोविड से तो मैसिव फ़र्क आया। मुझे लगता है ये इट्स अ कंटिन्यूस री इंजीनियरिंग प्रोसेस, और ये सब स्कूल के लिए अलग अलग है। जो डीपीएस में चल सकता है वो केवी में नहीं चलेगा, केवी में होगा वो डीएवी में नहीं चलेगा, डीएवी में होगा वो किसी और स्कूल। हर स्कूल को अपनी मेथोडोलॉजी डेवलप करनी चाहिए, अपना सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और डिलीवरी सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए कि वो क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्या रिसीव कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मतलब Okay. स्कूल एजुकेशन एक कंप्लीट री इंजीनियरिंग है। ये फाउंडेशन है बच्चे का, उसी फाउंडेशन के साथ वो ताउम्र जीता है। Absolutely. So, sir, according to you, from which class or at what age school should introduce these counseling sessions in regular classrooms? मुझे लगता है तो शुरुआती दिनों से ही होना चाहिए सर। एक Okay. छोटा बच्चा जितना जल्दी सीखता है ना, बड़ा नहीं सीखता। Right. उसको खाना कैसे, उसको बैठना कैसे, उसको कपड़े कैसे पहनने, उसको पढ़ना कैसे, उसको अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपने पेरेंट्स के प्रति कैसे बिहेव करना है। मुझे लगता है ये सारी इनकलकेट जो है वो शुरुआती दिनों से ही आपका शुरू हो जाता है। 6 साल का बच्चा 9 भाषाएं सीख सकता है, Absolutely. उसका माइंड इतना शार्प Sharp होता होता है। अब डिपेंड करता है ना आप उसमें क्या डाल रहे हो। गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो डालोगे वही तो बाहर निकलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को, चाहे घर हो चाहे आपका स्कूल हो, आप किस तरह की परवरिश दे। Okay. So, sir, have you been to any foreign school or university? Yes, many. I go to speak at many universities and schools worldwide. So, sir, can you tell me like any 5 differences which you have observed in foreign school and university in comparison with India? तो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं कभी भी फॉरेन स्कूल्स को और इंडिया के स्कूल्स को कंपेयर नहीं कर सकता। Okay. वहाँ के स्कूल में 200 बच्चे, हमारे यहाँ मिनिमम स्कूल 2000 का है। आप Right. कैसे हैबिट को करोगे? वहाँ पे 10 टीचर के पीछे एक बच्चा, हमारे यहाँ तो 60-60 बच्चे बैठते हैं, उनके पीछे एक टीचर है। उनके यहाँ पे फैसिलिटीज अलग तरीके की, हमारे यहाँ फैसिलिटीज बहुत अलग तरीके की। सो यू कैन नॉट कंपेयर, मतलब वन नीड टू कंपेयर एप्पल टू एप्पल। मुझे नहीं लगता है कि जो कोई कहता है जी नीदरलैंड की पढ़ाई ऐसी है और वहाँ की पढ़ाई ऐसी, वहाँ का कल्चर अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, वेदर अलग है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, और उनकी चैलेंजेस अलग हैं, हमारे चैलेंजेस अलग हैं, और हर कंट्री की नीड्स अलग होती हर हैं। कंट्री की नीड अलग है। तो ये कोई कहे कि जी हम नीदरलैंड से टेक्नोलॉजी लाकर इंडिया के स्कूल में डालेंगे That's not right. एज ए स्कूल ऑनर, आई डोंट बाय दिस। Okay. एज एजुकेशन, एज इन एकेडमिक्स, आई कैनॉट मतलब गो विद दिस। मुझे लगता है यहाँ का सिस्टम, यहाँ का माहौल, यहाँ के चैलेंजेस बिल्कुल अलग है। Right.
वहां का सिस्टम बहुत अलग है, वहां पे लोग ही गिने चुने हैं। उन देशों की पॉपुलेशन कितनी है सर? कितने दुनिया के देश हैं जिनका पॉपुलेशन हमारे एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट सिटी, से एक कम है, स्टेट से कम कम है? है। कौन सा देश ऐसा जहां पे एजुकेशन सिस्टम की बात हम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है ये बहुत, मेरे नज़र में बहुत बड़ा पाप है कि हम स्कूल एजुकेशन को, एकेडमिक्स को बाहर से अंदर से कम। आप बाहर का छोड़िए ना सर, द वे एजुकेशन सिस्टम इज इन दिल्ली इज डिफरेंट देन मुंबई, देन राइट। इन कलकत्ता, देन इन मद्रास। आप ज़्यादा दूर क्यों जा रहे हो? दिल्ली में अलग है, गाजियाबाद में अलग है, फरीदाबाद में अलग है, रोहतक में अलग है, भिवानी में अलग है, जयपुर में अलग है। हमारे अपने आप में कंपैरिजन बहुत अलग है। आजकल डिफरेंट बोर्ड्स भी हो गए हैं। सबके बोर्ड्स हो गए, सबका तरीका अलग है, फिर आईबी आ गया, कैम्ब्रिज आ गया, ये आ गया। अल्टीमेटली तो बात है कि भैया आपने जो कुछ करा, आप निकले कैसे? मैं पिलानी पढ़ा हूं, इतना स्ट्रिक्ट माहौल था, बहुत अलग था। 1 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी, उसी में हम बहुत खुश थे। आज आप 1000 रुपये बच्चों को देखो भेजो, उसमें भी खुश नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों से अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं। डेफिनेटली। सो मुझे लगता है वो एजुकेशन सिस्टम ही काम होगा। Sir, I was reading somewhere foreign universities are setting up campuses in India. So, sir, according to you, will this be a value addition in Indian education system? डिपेंड करता है भाई, उनके लिए मार्केट है ये। Okay. तो मेरे को तो नहीं पता कितना अच्छा होगा, पर यदि कोई सीखना चाहेगा तो ऐसा नहीं कि अपने इंडिया में स्कूल्स अच्छे नहीं है, कॉलेज अच्छे नहीं है। अल्टीमेटली कोई भी फॉरेन का कॉलेज इंडिया में है, अल्टीमेटली तो टीचर्स यहीं से जाने, 90-95% वर्क फोर्स तो कहाँ से होनी, यहीं से इंडिया से ही होनी। होगी। उनका तरीका अलग होगा, उनका सिलेबस यहीं का होगा। अल्टीमेटली वो क्या पढ़ाएंगे? यदि एमबीए पढ़ाएंगे तो यहीं का कोर्स पढ़ाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे तो यहीं की इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, आज मेडिकल पढ़ाएंगे तो इंडिया की मेडिकल पढ़ाएंगे। खाली क्या होगा? उनकी फीस स्ट्रक्चर अलग होगा, उनके कैंपसेस शायद बड़े होंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। अल्टीमेटली तो तेल तो तिलों से निकलेगा। सो अच्छी बात है बाहर के आ रहे हैं। आई बिकॉज एट दिस एज स्टेज आई कैन नॉट से राइट एंड रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि हमारा इंडिया का पूरा इकोसिस्टम बहुत रोबस्ट है। थोड़ा सा फाइन ट्यून, आज भी कुछ कॉलेजेस हैं उसमें एक सीट निकलती है, 100 बच्चे खड़े अप्लाई करते एप्लीकेशन हैं। और एक कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ 100 जिसके सीट्स अंदर मतलब 100 सीट, 120 सीट है, 10 भी नहीं भरती है। आज दिल्ली एनसीआर के अंदर 70% कॉलेजेस में एडमिशन नहीं है, राइट। और कुछ कॉलेज ऐसे हैं उनके यहाँ जगह ही नहीं है। तो ऐसा क्यों बिल्कुल। है? मुझे लगता है कि आप अल्टीमेटली क्या दे रहे हैं, कैसा आउटपुट निकाल रहे हैं, आपका एकेडमिक्स कितना स्ट्रांग है, आप कितने मजबूती से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उसमें बहुत को डिपेंड करता है। स्कूल यदि बात करें तो आप कुछ स्कूल ऐसे हैं जिसमें डबल जेड की भी क्लासेस हैं, डेफिनेटली। सेक्शंस हैं, डबल ए बी सी डी तो सुना था हमने। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं उसमें इतने हैं, और दिल्ली के कुछ स्कूल्स हैं उसमें लोग नहीं हैं। द स्ट्रगल टू फिल सीट्स। they struggle to fill seats and they do all kind of thing. So सबका मेथड अलग अलग है सर। और मुझे लगता है कि कोई भी काम करने के लिए लीडरशिप इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। राइट। अच्छे स्कूल्स हैं, एक टाइम पे बहुत अच्छे स्कूल हुआ करते थे, आज वो बिल्कुल खराब हो गए क्योंकि उन्होंने अपना सिस्टम को कंसिस्टेंट नहीं रखा। सो वेदर इट इज पेरेंटिंग और टीचिंग, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम। So, sir, what's that one piece of career advice you want to give to this generation, like Gen Zs and Gen Alphas? मुझे लगता है कि वन नीड टू एक्सप्लोर। Okay. देखिए हमारे देश में क्या है कि 90% ऑफ अस व्हाट वी स्टडी वी डोंट प्रैक्टिस, Right. एंड व्हाट वी प्रैक्टिस वी नेवर स्टडी। Correct. सो मुझे लगता है कि आप खाली इस बात की चिंता करें कि क्या होगा, फ्यूचर कैसे होगा। मुझे लगता है एक्सप्लोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितने लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, करते कुछ और है, कई लोग मेडिकल करके बीच में छोड़ देते हैं, कोई कॉमर्स छोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी सारी फील्ड में आप ही एक्सप्लोर करो कि आप किस में कितना अच्छा करोगे और लंबे समय तक टिकोगे। उसको पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करो, उसको एक्सप्लोर करो, और वो करियर आप अपनाओ। Okay. And one tip you want to give to students to unlearn those things, like
कोई बिलीफ सिस्टम ना फॉलो करे बट दे हैव टू एक्सेल इन टुमारोज वर्ल्ड. बिहेवियर. ओके. मुझे लगता है यदि मैं कहूं कि एक चीज आप डेवलप करो हम्म. तो आपके बिहेवियर पे काम करो. नंबर 2, आपकी पब्लिक स्पीकिंग पे काम करो. हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस पर आप काम करिए. आप ये काम करिए यार, मैं मेहनत कैसे कर सकता हूं. मुझे लगता है कंफर्ट को छोड़ने की आदत छोड़ डालिए. और आप मेहनत करके ओवरनाइट कुछ नहीं होता है. राइट. फॉर एवरीथिंग यू टेक टाइम. You establish a business, you establish work, There's no you overnight study. There success. is no shortcut in life. Absolutely. So don't go for shortcuts. Have a foolproof plan. और इस समय बहुत कुछ अवेलेबल है आपको बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है. और मुझे लगता है राइट एंड रॉन्ग के बीच में बहुत थिन लाइन है. Correct. वन नीड टू लर्न, वन नीड टू अंडरस्टैंड एंड वन नीड टू स्टडी दैट थिन लाइन कि व्हाट इज गोइंग टू सूट मी एंड व्हाट इज नॉट गोइंग टू सूट मी. तो मुझे लगता है कि वन नीड टू वर्क ऑन दिस एट आवर एज ऑल्सो. Every day is a new day for us. As a public speaker, every day you stand in front of an audience. Every day you have a new audience. नए लोग, नई बात, नया शहर, नई नई energies. भाषा, नया कल्चर, बहुत कुछ अलग है. So now if I keep on crying and every morning I leave home and I say यार क्या यार आज तो मद्रास जाना पड़ेगा, क्या आज तो कलकत्ता जाना पड़ रहा है, अरे मैं थक गया हूँ, अरे मैं ऐसा हो गया हूँ. बोलेगी भाई तुझे किसने कहा जाने के लिए. मत जाओ. I chose to speak and I choose and I go. I enjoy what I do. And I don't feel tired. The day I stop enjoying it, मेरे को आलस भी आएगा, थकान भी आएगी, दुख भी होगा, कर्ज भी करूंगा. और उस प्रोसेस में क्या होगा, मैं अपनी बात को खो बैठूंगा. Correct. So I love it. I enjoy it. That's why I'm doing it. So keep on doing. You must do what you enjoy in your life. Definitely सर, ये तो होना ही चाहिए. Whatever you do, you should enjoy at the fullest. एंड ऑफ द डे दैट इज व्हाट इज. हर काम आप खुशी के लिए तो करते हो. लास्ट में आपका सब कुछ होता है, खुशी नहीं होती. Correct. Absolutely. एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ डू इट फॉर हैप्पीनेस. Happiness. सो मेनी चिल्ड्रन दे से सर बहुत पैसा कमाना है, किसके लिए, खुश के लिए. तो मैंने कहा बहुत पैसा होना की गारंटी खुश होने की नहीं है ना. नहीं है. यू सी एवरी रिच पर्सन इन दिस वर्ल्ड लास्ट में कहते काश यार कम होता ना, वही ठीक था. वो पहले का टाइम ठीक था यार. अभी मैं वो अनिल अग्रवाल जी की वीडियो देख रहा था. उसने क्या कहा कि ज़्यादा पैसा होना भी बहुत दुखी है. Tension. टेंशन. कहते पहले मैं घर जाता था, मेरी वाइफ वेट करती थी, बच्चे वेट करते थे, हम साथ बैठ के खाना खाते हैं. कहते अब घर में अकेला हूँ मैं. अब जो मेरे घर के कुत्ते हैं वो मेरा वेट करते हैं, उनके साथ बैठ के मैं अपना टाइम पास करता हूँ. व्हाट अ स्टेटमेंट. हु इज गिविंग दिस स्टेटमेंट. वन ऑफ द रिचेस्ट गाय एंड ही इज फ्रॉम इंडिया. कोई फॉरेन का नहीं हो. फॉरेन का कोई आदमी आपको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देगा. Right. क्योंकि हम यहाँ इमोशनल बैगेज में कैरी करते करके हमारे. तो मुझे लगता है लाइफ को बैलेंस करना सीखें. Correct. Sir, what's that final piece of advice you want to give to teacher, parents, or whosoever is like watching this episode? मुझे पहली बात तो ये लगती है कि आप अपने आप से बात करना सीखें. Okay. मुझे लगता है आप अपने ऊपर ज़्यादा समय नहीं, कम से कम 2 मिनट आप अपने आप पर बिताएं. मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे पसंद क्या है, मेरे को शौक क्या है, मैं किस चीज़ को एंजॉय करता हूँ. कभी तो अपने आप से बात करना सीखें. दूसरा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि डू नॉट लेबल पीपल. द बिगेस्ट मिस्टेक पेरेंट्स एंड टीचर्स डू इन देयर लाइफ इज दे लेबल देयर चिल्ड्रन अपोजिट टू देम. आई फील इससे बड़ा कर्ज कुछ नहीं हो सकता. और तीसरी मुझे लगता है कि ज़िंदगी में शिकायतें करना छोड़ दो. ज़िंदगी में शिकायतें करना छोड़ दो, आधी उम्र तो यूं ही बढ़ जाएगी. तो मुझे लगता है लाइफ इज टू ब्यूटीफुल टू मेक नॉइस. स्टॉप Sir. कंप्लेनिंग. जो कुछ ईश्वर ने आपको दिया है बहुत पेट भर के दिया है, बहुत सोच समझ के दिया है. मुझे लगता है खुश रहने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए. ना खुश रहने के तो 1000 कारण हो सकते हैं. Right. तो मुझे लगता है स्टॉप कंप्लेनिंग. और मैं तो सर स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि खुशियाँ तो तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीरों में तो हर कोई मुस्कुराता है. और आपकी तकदीर और आपकी खुशियाँ आपके हाथ में है.
Amazing, sir. Amazing tip. And thank you so much for sharing all the insights, all your experience. And I truly believe that आज ये episode जो भी कोई देख रहा है, they have gained so much value and learned so much about life and other things. So thank you so much, sir, Thank you so for very sharing much. your intellect Thanks, with us. Jen Saab, for inviting me, and God bless you. Thank you, sir.